in the only person out of Ace of Space, Prateek, Fiza, Ria. These are the only three people I am in touch with. कि हम जो चार थे, मैं, फिजा, प्रतीक, दिव्या, ये हम एक बॉन्ड था. जैसे अभी मोज, अक्षरा, निशांत का प्रतीक थे. So Prateek can fight for 1 hour, 2 hour, 3 days, 5 days, 1 year also. He can go on and on and on. And people say that like Vikas Gupta had stated. Fezzi, you all are watching me on Telechaska. So hi Fezzi, once again, welcome to Telechaska, and we have seen you, speaking vocal about the reality shows and many things. So are you following Big Boss? And if you're following, so how is it going? So I am following Big Boss, and I am like nicely watching. But yes, what had happened was that I couldn't see it in between. Like for 5 days, I was in Delhi, so I couldn't watch it properly. But yeah, I was following it, not the 24/7 one, but the glimpse of it. So yeah. Okay, so we have seen you in Ace of Space with Divya and Prateek, and both the personalities are quite similar and different also. So what would you like to comment about them? What would I like to comment about them? In what way? Like their characteristics or their persona, like how they are in real life and in Big Boss. See, I would just say one thing, that people, when they enter a reality show, okay, for a few days, they can act or be like someone. Yeah. But after a point, the personality shows what they really are, and be it Divya or Prateek, like you said yourself in the beginning, that they are such solid personalities that they do not need or require an introduction, because people have already seen them in reality shows, and they're nowhere different than what they are in the show. The only thing different is, in this reality show, they don't, I think, consider themselves as brother and sister anymore. So yeah, I think they are against each other more than being with each other. So yeah. Okay. And I in fact know Zishan also, because I have shot with him in Box Cricket League, and he's a darling personality. Yeah. Okay. So coming to Prateek, how is your bond with Prateek off screen? In reality. Off screen, I think the only person out of Ace of Space, Prateek, Fiza, Ria. These are the only three people I am in touch with after Ace of Space, and obviously, like, ये लोगों से ना, जैसे फिजा से, प्रतीक से, ऐसे ना, ऐसे we know कि we'll call each other, talk to each other, or we'll speak, so the bond is that strong till date. So yeah. Okay, so when you heard the news that Prateek is entering Big Boss house, so what was your reaction, or did he called and told you कि I am going to Big Boss house? ऐसा कुछ हुआ था आप दोनों के बीच? So obviously, he wanted to do Big Boss, क्योंकि वो उसकी चाहत भी है, तो चाहत रखने के लिए जरूरी होना चाहिए चीजों के लिए, एंड जब जरूरत होगी तभी तो चाहत पूरी होगी, कोई बैठे बैठे स्टार नहीं बन जाता ना, उसे बहुत करना पड़ता है वहां पहुंचने के लिए, एंड ही हैड डन वंडर्स आफ्टर एस ऑफ स्पेस, क्योंकि किसी का सपोर्ट नहीं हो के अपने ऊपर एज अ वन मैन शो ही डिड अ लॉट, तो उसे किसी की जरूरत तो नहीं थी. शो बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर कोई जाना चाहता है, बड़े से बड़े स्टार्स जाते हैं, एंड आई थिंक he wanted it, that's why the universe gave him that. वो बात अलग है कि अगर वो उसकी चाहत है या जरूरत है तो सब एक ही शो में.
एब्सोल्युटली। इसके अलावा दिव्या की बात की जाए तो डे वन से ही हमने दिव्या और प्रतीक को एक दूसरे से अगेंस्ट देखा था। इससे पहले एज ऑफ स्पेस में वो दोनों ब्रदर सिस्टर थे। तो आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी इन दोनों के बीच झगड़े की? आई थिंक जो चीज प्रतीक को ट्रिगर हुई होगी वो शो के पहले से ट्रिगर हो रही थी कि हम जो चार थे, मैं, फिजा, प्रतीक, दिव्या, ये हमें एक बॉन्ड था। जैसे अभी मोज, अक्षरा, निशान का प्रतीक थे, सो हम तीन तो रह गए, बट दिव्या ऑब्वियसली मस्ट बी बिजी विथ हर वर्क एंड हर लाइफ, वरुण प्लस शी इज द, आई ऑलवेज से दैट शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी। वो अपना जो भी स्टैंड लेती है तो सही के लिए लेती है, बट वेयर शी मस्ट हैव हर्टेड प्रतीक, वेयर शी, करण जौहर ने पूछा था कि ओ तो आप इन्हें जानते हैं, शी वाज लाइक कि ये मेरे पिछले शो में कंटेस्टेंट रह चुके हैं। तो वो बॉन्ड आई थिंक मेंशन नहीं करना शायद प्रतीक को हर्ट हुआ होगा। आई डोंट नो क्या हर्ट हुआ है, बट वो दोनों का कनेक्शन इतना कुछ था नहीं ऑफ स्क्रीन बाहर। सो ये सुन के और ये देख के तो प्रतीक काफी बार हमारी बात हुई है इस बारे में, ही डिड नॉट लाइक द फैक्ट कि आप किसी को भाई बोलते हो और फिर आप जब जिस गायब हो जाते हो। ऐसे वो हमेशा ये बोलता रहता था दैट शी इज आई थिंक ये गलत है, दिस इज नॉट द राइट वे। सो या, आई थिंक दैट्स व्हाट मस्ट हैव ट्रिगर्ड हिम। ओके। एंड दिव्या की बात की जाए तो उन्हें कई बार ये देखते हुए कहा गया है कि मैंने काफी रियलिटी शोज किए एंड पीपल आल्सो गेट इरिटेटेड विद दिस स्टेटमेंट। सो व्हाट डू यू थिंक, इज दिस दिव्या स्ट्रेटजी टू शो हाउ शी हैव बीन थ्रू इन हर लाइफ, लाइक यहाँ तक पहुंचने के लिए सी, अगर आपने रियलिटी शोज किया है या किसी ने भी रियलिटी शोज किया है, आई थिंक a lion doesn't have to scream in the jungle that I'm a lion. If you have done it, people would know it. बोल के उसकी अहमियत कम हो जाती है, मेरा मानना है ऐसे। That अगर मैंने आज, I think Salman Khan doesn't have to say, oh hi, I'm Salman Khan. People know he's Salman Khan. He doesn't need an introduction. And similarly, अगर ज्यादा रियलिटी शोज किए भी है तो it's good for you because that reality shows have helped you to come to this. And हर चीज सेम नहीं होती। जैसे पिछले रियलिटी शो में ये तो भाई बहन थे, अब तो यहाँ जानी दुश्मन हो गए। तो सिमिलरली हर शो आपको कुछ नया सिखाता है। अब आई एम श्योर इसके बाद कोई रियलिटी शो रहेगा ही नहीं, क्योंकि बिग बॉस इज द पीक ऑफ रियलिटी। इसके बाद कोई रियलिटी शो है ही नहीं हमारे इंडिया में जो कोई कर सकता, सो आई फील अगर आपने किया भी है तो उसको आप तक के ही रखिए, क्योंकि द ऑडियंस नोज हु यू आर, बट द ऑडियंस विल नेवर एक्सेप्ट कि आपने ये किया है तो वो आपने अकेले में नहीं किया है, लोगों ने उतना प्यार दिया इसीलिए आपने आगे किया, so your love and I feel it, the more low you are with your work, the more happy people will be with you. ओके। एंड इसके अलावा हमने प्रतीक को कई बारी झगड़ा करते हुए देखा है लोगों के साथ, बट उस झगड़े में भी ही गिव्स सेवेज रिप्लाईज व्हिच इज क्वाइट ऑब्जर्विंग। सो आपको कभी ऐसे सेवेज रिप्लाईज उन्होंने दिए या कुछ ऐसा आपके साथ हुआ, वन इंसिडेंट दैट यू वुड लाइक टू शेयर? वो बंदे का, प्रतीक कैन fight for 1 hour, 2 hour, 3 days, 5 days, 1 year also. He can go on and on and on. And like people say that in like Vikas Gupta had stated in Ace of Space that Pratik बहुत ऐसे शेर बन के आया था and फैजी बोले जैसे नहीं, like it was a very funny statement, funny way the way he said it कि जैसे डॉग को कैसे लीश डाल देते, प्रतीक you will not do it, and he can't because he is a personality जिसको समझाओ तो वो समझ भी जाएगा, but he's like, how can you tell me like this, why did you tell me like this, I am calm. He is like that, why are you telling me to calm down, how dare you to tell me to calm down, I am calm, why are you telling me, like okay, you're calm, I know, why are you screaming, calm down.
तो इट्स जिस उसको ऐसा है कि बस मैं हूं तो बस मैं, and that's it, and there is no harm, that's self love, ओके so yeah. एंड दिव्या के बारे में अगर थोड़ी सी बात की जाए तो उनका गेम आपको किस तरह का दिख रहा है? एंड उनके बॉन्ड अभी हाल ही में आउट हो चुके हैं घर के बाहर, तो उस दिन भी वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, तो व्हाट डू यू थिंक कि इस तरह से अकेले गेम खेलना उनके लिए कितना आगे भारी हो सकता है, या इट वुड बी इजी फॉर हर? See, I think as an individual you have entered alone, तो तुम्हें किसी Yeah. बॉन्ड की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए. ठीक है, कनेक्शंस होते हैं, बट ट्रॉफी तो किसी एक को ही मिलेगी, सो कोई अकेला है नहीं उस घर में, सब अकेले आए हैं. इट्स देयर चॉइस that they have entered as a single personalities, so I think बुरा लगता है because Zishan was a friend, like I said, but उसी के साथ ही साथ ये भी है that somewhere I'm sure she wants to win the show, क्योंकि कोई सिर्फ घर में रहने के लिए तो नहीं आएगा. Who doesn't want to win the show, everybody wants to win the show. Okay. So yeah. And इसके अलावा घर में बाकी कंटेस्टेंट्स की बात की जाए, जैसे नेहा हो गई जो अभी प्रतीक की बॉन्ड है, उसके अलावा मिलिंद हो गए, अक्षरा हो गई, तो इनकी पर्सनालिटीज को लेकर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? See, Neha and Akshara के बीच अगर if I have to choose someone, I would choose Akshara, because मुझे वो बहुत रियल लगती है. मुंह फट लोग मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी बहुत मुंह फट हूँ. जो दिल में है वो जुबान पे है, और जिस वे में है वही वे में बोलेंगे. ये ध्यान रखेंगे किसी को हर्ट ना हो, बट अगर कोई हमें हर्ट करे तो वी विल आल्सो नॉट कीप क्वाइट, व्हिच इज अ वेरी गुड क्वालिटी. बट क्योंकि जो प्रतीक और अक्षरा का बॉन्ड था, आई रियली यूज्ड टू एंजॉय दैट बॉन्ड. मुझे काफी अच्छे लगते थे दोनों साथ में. बट अभी नेहा, they had this hashtag also, Prakshara outside, trending all over Twitter and everything. Exactly, I've seen, and then I really used to like both of them together. And जब उन दोनों ने एक दूसरे का करेक्शंस चेंज किया, because then I really love Milind also. Like I really love Milind. So उन्हें नेहा के साथ जो बॉन्ड नहीं था, वो काफी इमोशनल हो गए. अक्षरा और प्रतीक का बॉन्ड टूट गया, अक्षरा काफी इमोशनल हो गई. तो आई फील कि मुझे ये बॉन्ड और देखना था. लाइक आई थिंक एज ऑडियंस आल्सो, जब हैशटैग्स बनते हैं तो वो ऐसे ही नहीं बनते. दैट मींस पीपल आर एंजॉयिंग वाचिंग यू गाइस टुगेदर, इसीलिए हैशटैग्स बनते हैं. एंड नेहा एज अ पर्सनालिटी मुझे काफी कंफ्यूज लगती है. वो काफी कंफ्यूज रहती है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट पर्सनालिटी है उनकी. समझ नहीं आता कब क्या बोल रही है, कब वो अपने आप को एकदम स्ट्रांग बताती है, और कभी सडनली वो एकदम अपने आप को ऐसे बताती है दैट she is going through a lot, or she's faced many things. तो ये चीज जो है, I think you can use everything as your power, but then don't use it for a wrong way, क्योंकि फिर ऑडियंस तो ऑडियंस है, वो सब देखती है. So, yeah. Okay. एंड इसके अलावा घर में एक रियल कनेक्शन भी हमें बनते हुए दिख रहा है, वो है राकेश एंड शमिता का. दे आर गेटिंग टू नो ईच अदर एंड सम क्यूट मोमेंट्स आर आल्सो सीन बिटवीन देम. सो व्हाट वुड यू लाइक टू से? I feel that it's a house where there are fights, there is love, हर चीज होती है. और अगर आप किसी इंसान के साथ 24 घंटे हो, काफी दिन, पूरे दिन, ऑफ कोर्स उनकी अच्छी आदतें, बुरी आदतें बहुत अच्छी भी लगती है, बुरी आदतें बहुत बुरी भी लगती है. सो एंड लव इज लव. इट कैन हैपन एनी टाइम, एनीवेयर, एवरीवेयर. So yeah. Okay. And I would, they would make a good pair, I feel. काफी अच्छे लगेंगे वो दोनों साथ में. ओके, तो आपको क्या लगता है कि आगे इनका स्कोप है या नहीं, लाइक बिग बॉस के घर के बाहर? Why not यार? He is so handsome, she is so pretty. Of course. कितने अच्छे बच्चे भी होंगे उनके यार. They're like such nice, good-looking people. Okay. I would like to see them together.
we are also hoping कि हमें और भी उनकी ऐसे कुछ चीजें साथ में देखने मिले as a viewer. Sorry, what you're hoping? कि ऐसी कुछ चीजें हमें देखने मिले as a Of viewer. course, why not? हम बिग बॉस क्यों देखते हैं यार? ये सब मसाला नहीं रहेगा तो बिग बॉस हम देखेंगे, बी ऑनेस्ट। नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। हमें चाहिए एज ऑडियंस, वी आर द वन, कि हमको चाहिए थोड़ा लड़ाई हो, थोड़ा मारम पीटी हो, तो मारम पीटी इज अ रॉन्ग थिंग। मारपीट के चक्कर में तो निशान आउट हो गए। That is a very sad part. Now, I will tell you one thing about Z. Z is not like that. He is not at all so aggressive. He's such a loving personality कि आपको मैंने जब ऐसे सुना, क्योंकि मैंने वो एपिसोड देखा नहीं, तो I don't know who's right and who's wrong. But जब मैं जैसे ज़ीशान को जानता हूँ, he is such a lovely person and he's so non-harmful. But like I say, that the house gets into your head. After a point, आपको समझ नहीं आता आप क्या करने वाले हो. It's like that. Yes. And yesterday in the live somewhere we have seen कि मिलिंद ने भी अपना काम खो दिया था and he wanted to get out of the house. He was sitting there on near the gate. So that's how it was all going on. See, I feel that ये एक ऐसा जगह होता है ना where you are away from your loved ones, you're away from everything. तो आपको बस चाहिए होता है that sometimes people should just understand you and तभी you come to know कि okay ये सही है या ये गलत है या इसको एक बस मुझे एक escape चाहिए कि I just want to get out of the house. But this is a one time experience. आज I see कोई reality shows मुझे ऐसा लगता है नहीं shit मैं अगर एसो स्पेस में होता तो मैं ऐसे करता या अब मैं जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, but it's never gonna happen. It is a one time experience, and if it's happened, it's happened. वो कभी फिर से नहीं होने वाला. Absolutely. इसके अलावा फेयर और अनफेयर गेम की बात की जाए तो आपके हिसाब से कौन फेयर गेम खेल रहा है घर में ड्यूरिंग द टास्क एंड कौन अनफेयर है? See, you never know unless you're watching the 24-hour episode कि कौन फेयर हो सकता है कौन अनफेयर हो सकता है, एंड सिमिलरली अगर मुझे कोई पूछा जाए तो आई थिंक वी ऑल लव थोड़ा अनफेयरनेस एंड थोड़ा फेयरनेस. सो कौन अनफेयर है और कौन फेयर है, थोड़ा मिर्च मसाला नहीं होगा, थोड़ी अनफेयरनेस नहीं होगी तो लड़ाई नहीं होगी तो हमें एंटरटेन नहीं होगा तो बिग बॉस लगेगा ही नहीं. सो हर ये माइंडसेट होता है, जैसे ये 5 उंगलियां सेम नहीं होती वैसे 5 माइंडसेट सेम नहीं होते. किसी को लगता है कि वो फेयर जा रहा है एंड एवरीवन इज लाइक अ बुल, दे थिंक कि हम तो राइट है, बस हम राइट है और कोई राइट है ही नहीं, क्योंकि गाइड करने वाला कोई नहीं है. गाइड बिग बॉस अपना डिसीजन दे देते हैं, यू आर राइट यू आर रॉन्ग दैट वे. सो आई थिंक ये फेयर और अनफेयर, एवरीवन इज फेयर इन देयर ओन हेड. हाँ, किसी को कांडीगिरी करनी होती है तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. ओके. एंड निशांत की बात की जाए तो उनकी पर्सनालिटी किस तरह से दिख रही है आपको बिग बॉस के घर में? See, honestly, I have not known निशांत पहले से और मैं उन्हें बिग बॉस में देखा तो मैं जाना कि ओके मतलब he is a choreographer and stuff. तो मतलब ऐसे कभी जान पहचान नहीं है तो आई डोंट नो उनकी पर्सनालिटी एक्चुअल में क्या है, क्योंकि कोई लोग होते हैं जिन्हें हम देखते हैं हमें पता है अरे हाँ इससे तो जानते हैं, बाहर से देखा है, मिले है या जो भी कुछ, पर निशान के बारे में कभी देखा था ना सुना था, सो कभी इतना पता नहीं है. बट आई फाइंड हिम वेरी एंटरटेनिंग. आई लाइक दैट ही इज वेरी एंटरटेनिंग. वो मूव्स एंड प्रतीक अक्षरा ये जब 4 साथ बैठ के बात करते हैं मुझे तो बहुत आई यूज्ड टू एंजॉय दैट. It's like a deja vu for people who are in Big Boss like me, Fiza and Prateek. तो ये वैसा मुझे हिट करता है that okay ये भी चाहते हम भी चाहते. ओके. एंड प्रतीक एंड दिव्या को अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो, कुछ कहना हो तो आप उनको क्या कहोगे अगर बिग बॉस के घर में जाने का मौका मिला तो? कुछ एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि वो दोनों एज पर्सनालिटीज इतने स्ट्रॉन्ग है और इतने सेंसिबल है अपने डिसीजंस को लेके. लाइक आई ऑलवेज से मैं अपनी दिमाग किसी पे थोपना नहीं चाहता. हाँ, बट इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग आई विल करेक्ट देम
बट अकॉर्डिंग एज ऑफ नाउ तो दोनों सही जा रहे हैं. अगर किसी इंसान की किसी से नहीं बनती है तो वो ना बने, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी, यू नो. इट्स ओके नहीं बनना, इट्स ओके ये. बट यू नो, कहीं ना कहीं प्रतीक इज अ पर्सन, अगर आप उसे समझो, जैसे कि अक्षरा ने कहा था कि जैसे आप उसे समझो, तो वो बहुत खूबसूरत इंसान है अंदर से, और वो हमेशा आपके लिए रहेगा. एंड यू नो, लाइक यू सेड कि दिव्या कॉन्स्टेंटली कह रही थी मैंने ये किया है, मैंने वो किया है. तो आई थिंक एक्सेप्ट फॉर दिव्या वहां पे किसी ने ये चीज का टर्म यूज नहीं किया कि हमने ये कुछ किया है, या मैं बाहर से वो करके आई हूँ, या मैंने वो करके, क्योंकि इन दी एंड तो आप सेम लेवल पे हो. चाहे वो जरूरत हो या चाहत हो, चाहत और जरूरत एक साथ चल रही है. दैट मीन्स आप दोनों ने कुछ तो इतना वंडरफुल किया जब ही आप दोनों एक साथ हो, यू नो. क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि मेगा स्टार्स, बिकॉज अगर करने की ही बात है तो उसी घर में राकेश भी है, शमिता भी है, यू नो, जिन्होंने यहाँ पे सबसे ज्यादा बहुत कुछ किया. हर किसी की अपनी लाइफ होती है, अपना स्ट्रगल होता है, और एक अपना बैकग्राउंड होता है. जैसे हमने भी राकेश शमिता को देखा है, उनकी मूवीज देखी है और हर चीज देखा है, यू नो. सो रियलिटी शोज कंपेयर टू अ मूवी इज अ कंप्लीट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, बट येट वो भी साथ में है. So I think that proudy feeling or the attitude towards people is made Divya alone in the house. वरना जीशान के निकल जाने से दिव्या को कोई फर्क नहीं पड़ता, you know, like, क्योंकि और कनेक्शंस होते ना, आपने कनेक्शंस बनाया नहीं. जैसे एसो स्पेस में उसने कभी ये बोला नहीं था कि मैंने ये किया वो किया, इसलिए इतने कनेक्शंस बने, इसलिए भाई बहन बने, इसलिए people used to say that, you know, I am her twin, Fiza was her friend, Varun was her, you know, best friend back in the days, Maisha was her good friend. जब आप नहीं करोगे, when you are grounded to your roots, when you're down to earth, people would love to be with you. क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप को, जैसे करण जौहर ने भी बोला था कि आप इतनी बड़ी सुपरस्टार है कि आपको हमने ले आया, आप पूरे एंडमॉल ने या मैंने. सो यू नो, इमेजिन अ करण जौहर आल्सो फेल्ट कि शी इज सेइंग इट अ लिटिल टू मच नाउ, कि मैंने ये किया या मैंने वो किया. एंड इट लुक्स वेरी stupid to hear, you know, someone saying कि मैंने ये करके आया. Like, you know, it's one of that thing that, you know, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है. It's like that thing. हम जब सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना, what is he trying to say? Or what is she trying to say? वैसा सीन लग रहा था. Okay. And बिग बॉस के घर में कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जिसके लिए हाई टाइम है कि उसको अपना स्टैंड लेना चाहिए या गेम का लेवल थोड़ा अप कर देना चाहिए? राकेश. I feel राकेश. Why do you feel so? Yeah. क्योंकि देखो वो लेते हैं कहीं ना कहीं अपना स्टैंड. आई वाज कंफ्यूज बिटवीन राकेश एंड मिलिंद, बट अब जब से नेहा ने अपना चॉइस हटा के प्रतीक किया है, अक्षरा एंड मिलिंद साथ हुए, तो मिलिंद का पर्सनालिटी बहुत उठ के दिख रहा है, यू नो. मिलिंद इज हाईलाइटिंग अ लिटिल टू मच. अभी ऐसे वो दिख के आ रहे हैं कि हाँ मिलिंद है, वरना पहले मिलिंद नहीं दिखते थे, यू नो. एंड दिस इज अ शो अबाउट बीइंग सीन, एंड मिलिंद इज अ वेरी स्वीट गाय, यू नो. कोई लड़की होते हैं ना जिन्हें देख के ऐसा लगता है बस झप्पी पालो, पप्पी दे दो कि यार कितना क्यूट है बंदा. तो आई तो हैव अ ह्यूज क्रश ऑन मिलिंद क्योंकि ही इज सो अडोरेबल एंड आई लव हिज सॉन्ग्स. सो यू नो, मुझे ऐसा है कि आई वुड लाइक टू सी हिम इन द टॉप 6. Okay. And इसके अलावा करण जौहर एज अ होस्ट आपको कितने पसंद आ रहे हैं? बिकॉज इट वॉज यू नो स्टार्टिंग में लिटिल कंफ्यूजन था कि सलमान खान जैसा कर पाएंगे या किस तरह का उनका यू नो होस्ट रहेगा. बिकॉज वीकेंड का बाद या संडे का बाद एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे आपको सारी हफ्ते की समरी मिल जाती है. तो हाउ डू यू फाइंड दैट? ऑनेस्टली वो सलमान खान जैसे हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि सलमान खान इज ओनली वन, करण जौहर इज ओनली वन एंड फैजीबू इज ओनली वन. तो हमें रिपीटेड या जेरोक्स देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. उनका एक अलग तरीका है अपना होस्ट करने का. हाँ, there are things going on the social media that Karan Johar is a very biased host, you know. I don't know about biased or you know, loyal or whatever, but एक चीज मुझे जो अच्छी नहीं लगी थी कि जीशान को बात करने का मौका ही नहीं मिला था. आई थिंक जीशान was very much targeted
you know, in that one thing, where else on the other hand Salman Khan used to let the culprit talk कि ठीक है तुमने गलत किया ना, बोलो अपने खिलाफ, अपने हिस्से में जो भी पेश करना है करो, and then he used to take the case. But whereas Karan Johar वो काफी visible था, he is saying कि you know तुम गलत हो, तुम accept करो कि तुम गलत हो और मेरे से बहस मत करो. It was looking very much like that, you know, and that is a kind of a very unfair part of the show, because आप host हो तो you are here to correct them, but just hear them out. That's all. Okay. And lastly, Big Boss के घर में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कौन आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है other than प्रतीक? Other than प्रतीक? यार क्या यार, तुमने तो दिल ही तोड़ दिया मेरा. तो प्रतीक तो obviously रहेंगे ना. So प्रतीक तो है ही. प्रतीक के बाद see there are a lot of people I like. Support का तो मैं नहीं बोलूंगा, but there are a lot of people I like. You know, एक बॉन्ड है विद दिव्या जो obviously मेरी तरफ से तो वैसे का वैसे ही है. You know, she got a little busy, XYZ, I understand. ठीक है, वो उनका पर्सनल टाइम था, पर्सनल you know choices थी लाइफ की, but तो somewhere yes, the bond is there with Divya. इतना नहीं पहले जैसे, but I support Milind, I support Akshara, you know, and I really you know, somewhere I don't know why, but you know I love Z. Zishan is a wonderful person, trust me. तो you know ये लोग हैं जिन्हें I would like to see in the top 6. Okay. So Milind, Akshara, Zishan, Divya, yeah. Okay, and आपको क्या लगता है कौन बिग बॉस ओटीटी का विनर बनके बिग बॉस के घर में जगह बना सकता है? I don't know कौन बन सकता है, but I want to tell you कि किसे मैं चाहता हूँ बने, that is Prateek and दूसरा and imagine यार ऐसा सीन है that you know Prateek is a friend, Divya is a friend and even Zishan is a friend. तो जब ये तीनों लड़ते हैं ना, I feel like what the hell यार, why, काश मैं होता बिग बॉस में तो you know मैं इन तीनों के दिमाग में थोड़ा दिमाग डालता कि तुम क्या कर रहे हो पागल लोगों, you know, like कि why मेरे ही 3 लोग क्यों लड़ रहे हैं, बाकी के घर वालों से लड़ो तुम लोग. Okay, so, yeah. Okay. And you know, someday if you wake up like Divya and Prateek are born, so how shocking will be to you? If they start bonding? Yeah, like they choose each other in the game. How shocking will be it for you? Like someday you wake up and you see Prateek and Divya born. मुझे ऐसा लगेगा, हे भगवान तूने मेरी बात सुन ली, you know, मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना काम आ गई कि ये दोनों एक हो गए. क्योंकि you know देखो यार, भाई बहन एक बहुत बड़ा वर्ड होता है किसी को बोलने के लिए. And you know, like मैंने शहजाद को भाई माना था, and उनसे अभी भी मेरा connection है. I still consider him as my brother. You know, he is busy working, I am busy. हम दूर हैं एक दूसरे से, but यहाँ पे फिजा, मैं, प्रतीक, दिव्या दूर नहीं है, हम एक ही सिटी में. So you know, फिर अगर वो बॉन्ड नहीं होता ना तो वो hurt होता है. But you know, if they get along, I think I would be the happiest person if they get along. Okay. And lastly, fans and viewers को क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? I would tell all the fans that guys, it's a reality show. The show ends. These all are wonderful people and personalities. हर एक शो में हम जैसे घर में रहते हैं, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, हमारे पेरेंट्स से होता है, तो यहाँ तो सारे अनजान हैं एक दूसरे से, तो कोई बुरा नहीं है. तो किसी को, क्योंकि I see a lot of these social media fights, you know, the fans are fighting, abusing, Prateek fans are abusing, Divya's fans, ये अलग अपनी जंग कर रहे हैं. बिग बॉस में तो वो लोग कर ही रहे हैं, यहाँ पे ये लोग अलग जंग कर रहे हैं. तो you know, just take it as a show. You never know, बाहर निकल के सब एक दूसरे को गले मिलके and you know they just hug it out. So don't go so wild. Obviously अपने loved ones को support करना is very important, but that does not mean कि आप दूसरों को defame करें या उन्हें put down करें, क्योंकि putting down someone it's not a good thing. So हाँ, आप support करो,
अगर आप दिव्या के फैंस हो, आप दिव्या को सपोर्ट करो, बट दैट डजंट मीन कि आप प्रतीक को पुट डाउन करो। और अगर आप प्रतीक के फैंस हो तो आप प्रतीक को सपोर्ट करो, दैट डज नॉट मीन आप दिव्या को या उनके फैंस को पुट डाउन करो। एंड प्लीज बी सेफ, you know, you have to take care of yourself. We have to fight this pandemic. Please take vaccines. So yeah. Okay, Fancy, it was, fun chatting with you again, and all the best to you as well for your projects. And thank you, thank you guys. Yeah. This is Faizibu. You all are watching me on Telechaska. All right, darling. You please take care. Yes, you too. Take care. We'll meet soon. Bye. Take care, Baba. Bye. Yeah.